Hello class 9. So the next question number 3 of your exercise 2.4 chapter number 2 polynomials. Find the value of k. We have to find the value of k in the polynomials if x minus 1 is a factor of px. जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, वो सभी क्या है? x minus 1 is a factor of all of them. क्या होती है फैक्टर थ्योरम? व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a px का फैक्टर है, देन p a will be equals to 0. This value will be equals to 0. So we have to use this theorem, factor theorem part 2 in this. To find PA, we have to find A, and to find A, we have to equate this x minus 1 equals to 0. X minus 1 equals to 0. We get x equals to 1. So value of A will be 1. Put this value of a in this, put here 2x p1 equals to 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2, and this will be equals to 0 because by factor theorem PA, value of PA is equals to 0. Now solve this. 2, 1 square is 1, 2 ones are 2, plus k one time is k, plus root 2. The value of k will be this root 2 there, and this 2 also transposed to the other side. Minus of root 2 and minus of 2, this can be written as minus 2 plus root 2. Value of k will be minus 2 plus root 2. Let's take another question. Px is given as kx square minus 3x plus k. This is given. We have to find the value of k. So by factor theorem, we will apply this factor theorem only. Gx equals to, this is same for all the questions. Put this x minus 1 equals to 0. We get x equals to plus 1. So value of a is this. Find PA. What is PA? PA is P1, and put value 1 here. So k into 1 square, 3 into 1 plus k, and this total portion will be equals to 0. Why? Because x minus a, this x minus 1 is a factor. It is written, it is a factor. See here, x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. Now find this. This will be k into 1 k, 3 into 1 3, and again plus of k. 2k, k plus k will be 2k. This minus 3 transposed will become plus of 3, and k will be 3 upon 2. So answer is k equals to 3 upon 2. So question number 3 is finished. Now let's take another question number 4. Now students of class 9, let's take the question number 4 of your exercise 2.4. Question number 4 is factorize the following. The first question is 12x square minus 7x plus 1. I am using the method of splitting the middle term. What I will do, I will split the middle term. What is the middle term? This. So I write the sum. The sum is equals to minus of 7 and product. What will be the product?
ax square plus bx plus c. दिस इज द फॉर्म, ये फॉर्म का है, ये पॉलिनोमियल के कौन सी फॉर्म का है, इस फॉर्म का. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ c and a. What is c? c is 1. What is a? Into 12. So answer is 12. So when we get 12 as a product and minus 7 as a sum. So let's see. So product is 12. This plus 12 can be formed by 3 into 4. 3 4s is 12 and minus of 3 and minus of 4. Minus of 3 and minus of 4 will become minus of 7. Minus 3 and minus 4 will become minus 7. So we get two numbers. Numbers are minus 3 and minus 4. So just write it here. 12x square minus of 3x minus of 4x. Splitting this term into these two terms. Okay, this is the middle term. I have split it. Plus 1. Again, what is common in these two? This 12 can be written as 3 into 4. इस 12 को 3 into 4 लिख सकते हैं. लिखा मैंने. 3 और 3 कॉमन ले लिया. x here also, x here also. Take common. What will be remaining in the inside bracket? 4. This 4 and 1x. Minus sign. This will be 3x पूरा चले गया बाहर. The whole 3x is outside. Then this will be only 1. Again, see this and this. 4x 1, 4x 1. Both sides are there. But this is minus of 4x. This is plus of 4x. Just take common minus 1. When we take common minus 1, we get 4x and this plus will become minus sign. Okay? जो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको क्या चाहिए? अगर एक टर्म आपकी ये बनी है, जब भी आप कॉमन लेते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर, तो ध्यान रखिए अगर ये कॉमन ली है तो यहाँ पे भी यही आनी चाहिए. अब यहाँ पे यही आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो माइनस 1 का इंटू करूंगा तो माइनस 4x आएगा. प्लस 4x के अंदर माइनस का 1 इंटू कर दो तो माइनस का 4x आता है. और माइनस 1 के अंदर माइनस 1 इंटू कर दूंगा तो प्लस 1 आ जाएगा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो इस तरह से आपको चेक करना है. ठीक है. अब माइनस 4x माइनस 1 सॉरी प्लस ऑफ 4x माइनस 1 एंड प्लस ऑफ 4x माइनस 1, ये दोनों टर्म सेम है. तो क्या करो, इनको कॉमन ले लिया पूरा बाहर. ब्रैकेट में अब क्या बचेगा? इसको बाहर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा? 3x. इसको यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? ये माइनस 1. सो टर्म्स क्या आ गई? टर्म्स क्या आ गई? ये. तो ये फैक्टराइजेशन हो गया. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. ये है क्वेश्चन नंबर इसका 3. ठीक है. अब इसमें सम देखो. इसमें सम क्या है? 5 है. सम क्या है? 5 प्लस का 5. लेकिन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म. माइनस 6 इंटू 6 विल बी माइनस ऑफ 36. अब ऐसा क्या हो जब आपको सम आ जाए क्या? प्लस का 5, लेकिन प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ 36. देखिए क्या हो सकता है. उसके लिए आपको माइनस ऑफ 36 के फैक्टर्स निकालो. तो माइनस को भी रहने दो, सिर्फ 36 के फैक्टर्स निकालो. क्या आएंगे? 2 से डिवाइड किया 18, फिर से 2 से डिवाइड किया क्या आएगा? 9, फिर से 3,
और ये आ गए फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स से आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसे बनाओगे, दिस इज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, एंड 3 3 ज़ा क्या होता है 9। डिफरेंस निकालो, 9 और 4 का डिफरेंस कितना 5। तो इसका मतलब आपके जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 4x माइनस 6। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखिए 9, व्हाट इज कॉमन इन 9 एंड 6 3। अगर 6 में से मैं 3 निकालूं क्या बचेगा 2 2 3 ज़ा 6। और एक और चीज चाहिए, x भी निकाल लिया बाहर, 3x पूरा इसमें से बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या सिर्फ 2x, बिकॉज x स्क्वायर सो 2x, प्लस 9x में से 3x निकाल लिया, बचेगा क्या 3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, ये 3 3 ज़ा 9 है ना, इसलिए यहां से 3x निकाला तो बचेगा क्या 3, माइनस टर्म यहां पे भी सेम ही आएगी, यहां पे भी आप सेम टर्म लिख लीजिए, लेकिन अब यहां पे नंबर क्या आएगा वो आपको कैसे पता चलेगा बताइए। यहां पे टर्म क्या आएगी, देखो 2x प्लस 3 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आए, 2 और 4 को देखो तो आंसर तो क्या आएगा 2, 3 और 6 को देखो तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा भी 4 होता है, और साइन माइनस का है दोनों में, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, तो -2 आएगा, क्या आएगा -2। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3x माइनस 2, ये 3x और ये -2, एक 2x प्लस 3 2x प्लस 3 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गए फैक्टर्स हो गए, किसके फैक्टर्स, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। एक फटाफट से लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हो, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। अब ध्यान से देखो सम क्या है, सम क्या है माइनस का x है ना, तो -1 और प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट -4 इंटू 3, -4 इंटू 3। तो ऐसा कब होता है, ऐसा एक ही केस पॉसिबल है, बताऊं 4 माइनस के 4 में से -4 उसके अंदर आप +3 कर दे तो आंसर क्या आता है -1 है ना, ये आंसर आएगा। देखो -4 में प्लस का 3 करते हैं तो आता है -1, यही चीज यहां पे लिखो 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x पहले लिख दो, माइनस का 4x बाद में लिख दो, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे कॉमन ऐसे आएगा और यहाँ पे 3 है तो इसलिए 3 कॉमन आ जाएगा। टेक आउट 3x, यहाँ पे 3x है यहाँ पे भी 3x है, अब बचेगा क्या सिर्फ x, अब अंदर क्या बचेगा +1, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 4 कॉमन दिख रहा है, माइनस का 4 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा ये ही यहाँ पे आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज अलग हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दिस विल बी ऑलवेज सेम। सो आवर फैक्टर्स आर 3x minus 4 and x plus 1. So this is the answer. Next we will take the question number 5. Okay, thank you very much.